So today we'll be starting a new topic, that is foundational values. Okay. So foundational values of civil services. So in today's class we'll be covering some questions. Directly we'll cover questions. Then in the next class we'll be starting with the theory. But once you know the question and answer, so it becomes very easy to cover the topic. Okay. So why do we need foundational values in civil services or civil services administration? See, foundational values क्या होता है? कोई एक वैल्यू सिस्टम रहता है जिसको सिविल सर्विसेज में फॉलो करना है. ओके, देयर आर सम वैल्यू सिस्टम्स व्हिच यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर इनटू ब्यूरोक्रेसी. दैट्स इट. सो वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स on which we evaluate things, right? For every situation we do not have time to test the case on ethics theories such as utilitarianism. देखो बहुत सारे theories ethics के. Okay, for example utilitarian theory क्या बोलता है? Utilitarian theory बोलता है कि whatever you do, your action, it will be judged on the basis how much better it is doing for the more number of people or the majority of the people. If the majority of the people are satisfied, then your action is good. ठीक है. वैसे बहुत से ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, यूटिलिटेरियन एथिक्स है, बहुत सारे एथिक्स थियोरीज है. तो हर टाइम पे why do we need foundational values in civil services? First of all, values are standards on which we evaluate things. For every situation we do not have the time to test the case on ethics theory such as utilitarianism. Utilitarianism theory ये बोलता है कि whatever action you do, if the action is satisfying the majority of the people, then your action is good or it is ethical. वैसे ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, इट फोकसेस ऑन द ड्यूटी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो बहुत सारे थ्योरीज है. सो हमेशा एवरी टाइम हम हर थ्योरी को तो टेस्ट नहीं कर सकते. तो दैट इज द रीजन वाई कुछ वैल्यूज है एंड दैट वैल्यूज यू नीड टू फॉलो. Okay, so values provide the time saving shortcut in such situation, because situations every day you'll be facing a lot of situations. हर दिन आपको बहुत सारे सिचुएशन फेस करना है. Okay, every day it will be dynamic. Okay, so we need foundational values in civil services administration because the concept of public services is fast changing and is becoming very dynamic in nature. जो हमारा जो सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज में जो काम होता है, सो इट इज वेरी फास्ट चेंजिंग. आज के डेट में इट इज नॉट स्टैटिक. एवरी डे इट चेंजेस. एवरी डे विल फेस न्यू चैलेंजेस. सो दैट इज व्हाई कुछ वैल्यू सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है. That is one thing. Second is bureaucrat has become directly accountable to the citizen customer. He has to respond to the moral universe of the citizens. और हमेशा citizens चाहते हैं, they want कि the bureaucrat should be moral at least. Okay, so कहीं ना कहीं हम एक accountability factor आ जाती है. We are accountable. ऐसा नहीं कि जैसे directly they have voted, the people have voted you. It's not in that sense. But still then आपके services जो देते हो, आप कहीं ना कहीं accountable होते हो. Okay. He has discretionary powers. Therefore, he must be provided with guiding principles to prevent abuse of power. तो कुछ पावर रहता है जो कि आप अपने डिस्क्रिशन में लोगे. You will be taking some powers or taking some decisions which are discretionary. Therefore, कुछ वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज होना चाहिए ताकि वो अब्यूज ऑफ पावर ना हो. So that you do not abuse your power, or you should not use your power in a arbitrary way. Okay, क्योंकि आप कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दिया गया है, that is why you should abide by the values. Various committees have recommended foundational values for civil services. The two big names are the Nolan Committee और second ARC. एक second ARC रिपोर्ट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, जिसमें एक रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस. उन्होंने काफी सारे वैल्यूज दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले नोलन ने क्या किया है. एक फॉरेन का है. नोलन हैज लिस्टेड 7 फाउंडेशनल वैल्यूज: leadership, honesty, selflessness, openness, accountability, integrity, objectivity. Okay, ये 7 वैल्यूज नोलन ने बोला है कि यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर इनटू ब्यूरोक्रेसी. एक एक का मीनिंग हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, बट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट व्हाई वी नीड फाउंडेशनल वैल्यूज, सो हम एक्सप्लेन किए हैं दिस. No need to explain each word. There will be another question where they'll ask you to explain each word with proper examples. ARC mentioned the following values. So the values mentioned by ARC are objectivity, commitment to the principles enshrined in the Constitution, empathy, tolerance, compassion for the weaker sections of the society, adherence to the highest standards of probity, integrity, and conduct, commitment to the citizens concerned and public good,
impartiality and non-partisanship. Non-partisanship means we are not taking sides of any particular political party. ARC ने बोला है, it has mentioned you have to be non-partisan. You should not follow a particular political party while delivering your services. Objectivity means you have to take all your decisions in a very objective way. Objective means a proper rationality, proper analysis, in a merit way पे आप लोगे. ये सब हम डिटेल करेंगे अभी. आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना है. आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते, आप लीगल से बाहर नहीं जा सकते. एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सब वीकर सेक्शंस के लिए आपको दिखाना पड़ेगा. एडहेरेंस टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा. मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मैन ऑफ प्रोबिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा. कमिटमेंट टू द सिटीजंस, कंसर्न एंड पब्लिक गुड. पब्लिक की भलाई, पब्लिक गुड के लिए आपको काम करना पड़ेगा. ये वैल्यूज ARC रिपोर्ट ने बोला है. And why we need the values we have already mentioned. Coming to the second question. Now coming one by one. अगर क्वेश्चन आएगा, so one question from the foundational values is define objectivity. Now is objectivity, which is a foundational value, always possible in a country like India? You have to give your own point. That in 150 words. Objectivity क्या होता है? Objectivity is also one of the foundational value. Objectivity refers to the ability to judge fairly without bias or external influence. It is the quality of being true even outside of a subject individual bias, interpretation and feelings. आप जो भी डिसीजन लेते हो या फिर जज करते हो, it should be fair, उसमें bias नहीं होना है, and it should not be influenced from some other external factor. So it is the quality of being true even outside of a सब्जेक्ट और इंडिविजुअल. अगर आपका कोई इंडिविजुअल बायस है, यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और यू लाइक समवन और यू हैव समथिंग लाइक यू आर टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, वहां पे आपका कोई फैमिली का अगर आएगा, सो यू हैव आल्सो इंडिविजुअल बायस फॉर दैट पर्सन, बट यू शुड टेक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. जो लिखा गया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लेना है, दैट इज मेरिट. ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. ओके, कोई आपका पर्सनल फीलिंग्स, इंडिविजुअल बायस नहीं आना चाहिए वहां पे. An objective civil servant is expected to provide information and advice to all the concerned people on the basis of the evidence and accurately present the options and facts. Accurately आप evidence के हिसाब से काम करोगे and accurately present the options and facts. He takes the decisions on the basis of merit and take due account of expert and professional advice. अगर आपके पास वो एक particular decision के लिए आपके पास expertise नहीं है, if you do not have that expertise, you take the advice, but आपको करना है merit के हिसाब से. So एक objectivity creates legitimacy of bureaucracy. एक bureaucracy को legitimate बनाता है. It creates legitimacy. एक validity देता है, एक legitimacy देता है. Okay? तो ये हो गया आपका define आपने proper define कर दिया यहाँ पे. Because the point is we have scope only for 150 words. We can't breach that. ठीक है. अभी क्या ऑब्जेक्टिविटी ऑलवेज पॉसिबल है? तो वहां पे आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताना है. क्या इन अ कंट्री लाइक इंडिया हमें पॉसिबल हो सकता है हर टाइम आप पूरा का पूरा ऐसा मतलब पूरा मेरिट के हिसाब से प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस या फिर प्रॉपर एविडेंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो, प्रॉपर फैक्चुअल डेटा के हिसाब से आप काम कर सकते हो क्या? दैट इज द क्वेश्चन. सो कहीं ना कहीं द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिविटी इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे करोगे? तो आपको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देना है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट डिजायरेबल टू ऑलवेज रिमेन ऑब्जेक्टिव. इनफैक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट. क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है? नो. चेंज होता है, वहां पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे चीजों के ऊपर बार बार इंटरप्रिट किया है. देयर आर सर्टेन बायस तो रहेगा, शोन इन फेवर ऑफ द पीपल. एग्जांपल दोगे? देखो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स SC ST. पॉजिटिव देखो, जो SC ST है या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस है, तो उनके तरफ थोड़ा करना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू फेवर देम, टू अपलिफ्ट देम. ओके, अपलिफ्ट करना पड़ता है. जैसे रिजर्वेशन होता है, नाउ द गवर्नमेंट गिव्स रिजर्वेशन. यू कांट से कि इट इज बायस. नो, रिजर्वेशन इज अ लाइक इट्स अ थिंग टू अपलिफ्ट. ओके, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एनालिसिस. सब्सिडीज दिया जाता है, इरिगेशन सब्सिडी दिया जाता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया जाता है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं दिया जाता है. तो वी कांट से कि इट इज नॉट, इट शुड नॉट बी गिवन बिकॉज इट इज नॉट इक्वल और यू आर बीइंग बायस. नो, इट इज जरूरी है वो.
क्योंकि वो सब्जेक्टिव एनालिसिस है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एनालिसिस है। किसको कितना चाहिए सब्सिडी, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ like we're talking about India में these are done. So we should not make this answer a GS answer. आपको यहाँ पे सब्सिडी के बारे में इकोनॉमी नहीं लिखना है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में GS2 नहीं लिखना है. Okay, you should not write. So many theories now have discarded the idea of subjectivity. बहुत सारे ऐसे theories है जो कि आजकल उसको नहीं मानते हैं, discard किए हैं. As per these theories, if a person is sensitive, intelligent and smart, then he cannot be objective because his personal biases and interpretations will always be reflected. तो कुछ थ्योरीज ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक पर्सन स्मार्ट है या फिर इंटेलिजेंट है या फिर वेरी सेंसिटिव, उसको पता है, सो ही विल ऑलवेज गो एज पर द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली बीइंग अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से वो काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के काम करेगा, बट he cannot be objective because his personal biases interpretations हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, उसका जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो कैसे इंटरप्रेट करता है, ओके हमेशा वो उसके डिसीजन मेकिंग में आएगा, always be reflected in his or her judgments. Thus we can say that objectivity is a foundational value of the civil services, but from a practical point of view वो absolute, it is not absolute. Maybe it's a foundational value, but practical point of view में you can't be always objective. It is good to be objective, but you can't be always objective. Okay, same question, थोड़ा different style में. What is objectivity? How to inculcate objectivity in civil services? ये direct question है. ऑब्जेक्टिविटी क्या है आप आराम से डिफाइन कर लोगे, ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में जैसा था एग्जैक्टली वही लिखना है. अब हम ऑब्जेक्टिविटी सिविल सर्विस में कैसे इनकलकेट करें, कैसे हम लाएंगे, वैसे ये बुरी चीज नहीं, ऑब्जेक्टिविटी इज ए गुड थिंग, बट हाउ टू इनकलकेट इन सिविल सर्वेंट्स, कैसे लाएंगे उनको. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी फर्स्ट की आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रेन देम. ट्रेनिंग इम्पार्ट्स राइट गाइडेंस to the people who are delivering the services. This also ensures that public servants know what all needs to be done. उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिमांड करता है ये सर्विस. क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम उनको बताएंगे कि एवरीथिंग, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी में यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको डेटा चाहिए, यू हैव टू मेरिट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रॉपर एविडेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी क्रिटिकल थिंकिंग. जैसे कि फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिगन गोल्ड हंटिंग इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एन ऑर्डर ऑफ ए यूनियन मिनिस्टर हु बिलीव्ड ए बाबा. दे शुड, देखो ये एक यूनियन मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि गोल्ड हंटिंग करो. उसने एएसआई को बोला, एएसआई से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है या फिर रेगुलेट करता है. सो एएसआई ने बिगन किया गोल्ड हंटिंग करो. क्यों? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर बोला कि करना है, क्योंकि वो एक बाबा को बिलीव किया. बट क्या इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है? सिंपली ये तो एक लाइक सुपरस्टिशियस बिलीफ है. सो दे शोड लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बाय ब्लाइंडली फॉलोइंग डिक्टेट्स ऑफ हायर अथॉरिटी. अगर एक लाइक सिविल सर्विसेज ऑफिसर डायरेक्टली इसको फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, यू सिंपली ब्लाइंडली फॉलोइंग इट. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. Lack of objectivity. Okay. Right to review decisions, or within judicial or administrative procedure there should be mechanism for appellate board. For example in taxation, land acquisition, हमेशा एक जो भी आप डिसीजन लेते हो एक रिव्यू डिसीजन करने के लिए बहुत जरूरी है, आपका राइट होना चाहिए. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ appellate. जैसे कि appellate jurisdiction होता है, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. वैसे ही हर चीज में, टैक्सेशन में हो, लैंड एक्विजिशन में, देयर शुड ऑलवेज बी अ रूम फॉर एपेलेट बोर्ड. कभी कभार गलती हो जाती है, पता नहीं चलता है, तो राइट टू रिव्यू डिसीजंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है हर जगह. राइट टू बी हर्ड. ऑफन ऑफिसर्स डोंट हियर द कंप्लेंट और ओपिनियन ऑफ पीपल properly and just do the things that are in their mind. Hence new schemes should have social audit और पब्लिक हियरिंग कंपोनेंट्स. हमेशा कोई भी आप स्कीम लाते हो, एनी स्कीम, बिकॉज द सिविल सर्वेंट्स विल बी इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स, सो हमेशा एक राइट टू बी हर्ड, तभी जाके आपको पता चलेगा, आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाओगे. अगर आप प्रॉब्लम सुनोगे, लोगों का प्रॉब्लम सुनोगे, तब
एक स्कीम सही हो रहा है या नहीं, द मनी इज गोइंग राइटली टू द राइट पीपल और नॉट, तो हमेशा एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। ओके, तो ये एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नीड टू हैव हार्डकोर इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। आप कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग, यू नीड टू हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर डेटा, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स आपको होना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस, और तभी जाके यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन impartially, or you can take on merit with proper evidence. For example, lack of proper statistical databases to compare performance with respect to SDG goals. SDG हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम सब कर रहे हैं, हर स्टेट कर रहा है, इंडिया भी कर रही है। कैसे हम अचीव करेंगे जो 17 गोल्स है, तो वो गोल्स कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज 17 गोल्स है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उसमें अगर हमारे पास प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटाबेस नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी डिसीजन। अब डिसीजन सही से सिविल सर्वेंट नहीं लेगा तो obviously our targets will not get fulfilled. Okay, Sir, yes. Sir, once again, can you repeat about the right to hear? Fourth point, right to be heard means any scheme you are taking, or any scheme you are implementing, to for whom you are implementing, for the public you are implementing. Okay, so right to be heard, usually public अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है, ग्रीवियंस लेके आता है, सिविल सर्वेंट डोंट हियर। When you don't hear, so obviously it will affect in implementing the scheme. आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जब आप सुनोगे नहीं। यूजुअली द न्यू स्कीम्स के पास, हर स्कीम के पास एक सोशल ऑडिट होना चाहिए, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट टीम आएगा, चेक करेगा सही से हो रहा है नहीं, लोगों की बात सुनेगा, दे हैव टू हियर द कंप्लेंट्स कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या अच्छा हो सकता है। सो इन दैट सेंस दिस इज राइट टू बी हर्ड। Got it? Transparency. तो finally transparency. For example, Right to Information Act जो हमारा RTA Act है 2005 का. Bureaucrat will think twice before taking subjective discretionary decisions, fearing that he will have to answer if someone files an RTA. एक ट्रांसपेरेंसी भी देता है। ये चीज क्या होता है, मतलब जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, हम ब्यूरोक्रेट्स को बताना पड़ेगा ट्रेनिंग में कि इफ यू डोंट टेक डिसीजंस नाइसली, ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन डिसीजन लेते हो, ठीक है, आपके पास पावर है, लेकिन आप बिना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में कुछ ले लेते हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इफ दैट पर्सन और दैट सिटीजन फाइल्स एन आरटीआई, सो यू हैव टू फेस इट, राइट। तो ये सब चीज हम बोल के इनकलकेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इनटू द माइंड्स ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स और इनटू ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी। अब कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं, एग्जांपल मैं बता दूंगा, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग, आई हैव जस्ट मेंशन इट बट आई विल गिव द एग्जांपल्स नाउ। डिफाइन द टर्म्स apathy, sympathy, empathy and compassion. Usually what happens is all these four terms you use it in a single time or in a very similar way हम use करते हैं, but actual में वो नहीं है, there are differences, I'll tell you. difference क्या है? Apathy क्या है? पहले apathy is the state of indifference or the state in which no emotion such as concern, care, motivation are shown. Apathy तो पूरा negative word है, हम हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट्स apathy towards the weaker sections, we always write ना गवर्नमेंट्स apathy, तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो गवर्नमेंट्स apathy towards the weaker sections. Here one example you can give, government apathy towards poor people, ठीक है। और जो लोग जैसे कि विंटर्स में दिल्ली में लॉट ऑफ पीपल इन चिल्ड कोल्ड विंटर दे स्लीप एट जो स्ट्रीट्स में सोते हैं, गवर्नमेंट कुछ खास करती नहीं है उनके लिए, दैट एग्जांपल यू कैन राइट, सो देयर यू कैन यूज द वर्ड एपैथी। सेकंड, सिंपैथी। तो सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन, ये तीन बहुत जरूरी है। यू हैव टू यूज द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। यू कांट यूज कंपैशन के जगह आप सिंपैथी नहीं डाल सकते। राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस, राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस।
इम्पोर्टेंट क्या है, केस स्टडी में काम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आएगा, लेकिन केस स्टडी जब दिया जाएगा, व्हेन यू सी द केस स्टडी ऑफ द स्टोरी जब आपको दिया जाएगा, देयर यू हैव टू, अगर कुछ सिचुएशन आएगा, यू हैव टू क्लियरली यूज द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। सिंपैथी, इट इज एन इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ऑफ काइंडनेस व्हिच इज मोमेंटरी इन नेचर. It is spontaneous and real understanding of the problem is not there. या सिंपैथी में क्या होता है, वो एक इंस्टेंट रिएक्शन है. यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. वो एक इंस्टेंट रिएक्शन है ना, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड. एक इंस्टेंट रिएक्शन है किसका, काइंडनेस का. ओके जो कि मोमेंटरी है, थोड़े टाइम के लिए है. इंस्टेंट है तो वो स्पॉन्टेनियस है. बट हियर प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉपर प्रॉब्लम जो पुअर का है वो आपको पता नहीं चलता है. एग्जैक्ट रियल अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंड ओके देयर इज अ प्रॉब्लम, बट रियल अंडरस्टैंडिंग आप ज्यादा डीप नहीं जाते. इट्स सिंपली इंस्टिंक्टिव रिएक्शन. एक रिएक्शन होता है, यू आर सिंपैथी, यू हैव अ सिंपैथी टुवर्ड्स. हम बोलते हैं ना ये इसका काफी सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, तो सिंपली वो एक सिंपैथी है, उसके आगे कुछ नहीं है. रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट देयर. ओके, और एक एम्पैथी. एम्पैथी में ये सिंपैथी का वन स्टेप अहेड है. It involves putting oneself in another man's place to understand his pain and sorrow. यहाँ पे आप sympathy तो obviously it is there. Sympathy is there. Sympathy comes under empathy. But plus यहाँ पे you put yourself in his place to understand his pain and sorrow. तो यहाँ पे cognitive भी है, emotional aspects भी है. Because sympathy है तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है you are becoming emotional. Cognitive भी है because you understand the cognitive हम usually एक like knowledge base में use करते हैं, but यहाँ पे cognitive का मतलब है you understand exactly his pain क्या है, उसका sorrow क्या है, because you put yourself in his place. So understanding of the nature and intensity of the problem is there, जो कि sympathy पे नहीं था. यहाँ पे you understand the real problem. So कहीं ना कहीं the word empathy is more sustainable than sympathy. ठीक है, तो sympathy पहले, फिर empathy. Okay, being empathetic involves deeper relation than being sympathetic. Empathy is stronger attitude than sympathy, hence it's a better indicator of behavior. It's a better indicator of behavior than sympathy. Compassion. Compassion क्या है, ये इन्वॉल्व करता है सब कुछ. सिंपैथी भी इन्वॉल्व करता है, एम्पैथी इन्वॉल्व करता है ऑब्वियसली. तो यहाँ पे सिंपैथी में सिंपली यू, पहले आप कहीं भी पुअर को देखते हो या फिर एनीबॉडी हु इज इन बैड कंडीशन, यू सी यू हैव अ sympathetic attitude. Now you exactly understand what is the problem. You have that emotion also, that is empathy. Now when you do something for them, it becomes compassion. You do something for them out of these two emotions. When you do something for them, it becomes compassionate. हम बोलते हैं ना compassionate approach हमेशा यूज करते हैं. It means the guy is doing like it's converting these two emotions into actions. काम पे दिखाता है. So it involves not only understanding but also a desire to help alleviate the suffering of other persons. तो यहाँ पे फोकस क्या है, एक्शन के ऊपर है. फोकस इज मोर ऑन एक्शन. एक एग्जांपल देता हूं, ये तीन चीज कवर हो जाएगा. ओके, एग्जांपल पे आप लिख सकते हो, रोड पे यू सी एन एक्सीडेंट. ओके, यू सी एन एक्सीडेंट and the person is very like heavily wounded. ठीक है, you see an accident, the person is very heavily wounded and people around are taking pics. When you pass, you see the guy and you feel okay, नहीं होना चाहिए था. ठीक है, you just feel it, sympathy. ठीक है, now you are in a car. Okay, now you stop the car, get down from the car. Okay, get down from the car because you became sympathetic towards him. Now you ask him what are the problems, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां से हो, कैसा हो, क्या को, everything you ask. You like you get to know
why he faced this accident, how it have happened, are you in some issue, या फिर कुछ problems है, या फिर anything you ask, you are empathetic. But when you take him to hospital and do his treatment, then you are compassionate. Okay, then you are compassionate. So ये सब examples है. Similar example जब आप कोई poor को देखते हो, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में, देखते हो, बुरा लगता है, सिंपैथी, ठीक है, बात करते हो, उसको पूछते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या है, यू अंडरस्टैंड हिज पेन. इफ यू आस्क और डोंट आस्क, इफ यू अंडरस्टैंड हिज पेन फ्रॉम इनसाइड, empathy. But when you open your purse and give him 100 or 500, do something or give him some food, compassionate. Simple है, ठीक है. You can write your own examples. Okay. Next. Sir, can we say empathy in that way, like not showing any feeling for us, not expressing what we want to? No, empathy is feeling, right? You understand the pain. Yeah, empathy, not empathy, like the first one, empathy. Sympathy में feeling नहीं है. Sympathy just an instant reaction. It's an instant reaction. It's not bad. It's an instant reaction just. First one, sympathy. Apathy, like. Apathy. Apathy is totally negative word. It's a negative word. You do not have anything. No emotion. No emotion. Like even it might be good or it might be bad. Like, you don't have any. No, you are not doing anything for it. It's a totally negative word. Apathy is a very negative word used in English. Apathic, like government's apathy towards that person. हम बोलते हैं ना, हाँ, for the people of poor people, government कुछ कर नहीं रही है because कोई feeling नहीं है. We always use this word. Apathy we use. हमेशा यूज करते हैं. पेपर आप पढ़ोगे, वहां पे गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट का हम देखते हैं, एपैथेटिक एटीट्यूड है, वहां पे वो वर्ड यूज होता है. Not only in government, usually government use this word is used. Anything you can use. जहाँ पे feeling नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो, आप मतलब sympathy का total opposite is apathy. So यहाँ पे अगर हम उसको like we compare it, having compassion for others requires want to put the other person first, imagine what the person is going through, and then do something which can make the feel them better. मतलब आप पहले compassion है, मतलब आपके पास सब कुछ है, आप सामने वाले के shoes में जाके आप you understand what is the problem. You imagine what he's going through. You feel like अगर मैं उसके जगह होता तो क्या होता. You imagine that. Then you do something. So इधर main जो काम है, you do something. ठीक है. So compassion is what made Mother Teresa leave her motherland and serve selflessly in Kolkata. Compassion मतलब you do it. Action में दिखना पड़ेगा. आप जितना भी बोलो और जितना भी कर लो, if you don't show it in your action, then you are not compassionate. आपको अपने action में दिखाना पड़ेगा. Whenever you do something, anything. It can be from a doctor point of view, it can be from a teacher point of view, it can be from a friend point of view, from the government point of view. Action में दिखाना पड़ता है. Okay, so जो words है आप use कर सकते हो यहाँ पे. Apathy means indifference, sympathy means kindness, empathy means you experienced. Experience करने के बाद compassion means action. Okay, next. Why is empathy and compassion required in public services? It's a very direct question. अब ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पहले एम्पैथी का एक मतलब बता देना, लाइक डिफाइन कर देना, फिर कंपैशन को डिफाइन कर देना, फिर राइट की कंपैशन इज मोर सस्टेनेबल देन एम्पैथी. वैसा कि नहीं है कि एम्पैथी खराब है, वो भी चाहिए, बट कंपैशन उससे थोड़ा बेटर है. ओके, बिकॉज हियर एक्शन इज लेकिन द एक्शन इज देयर, मतलब हम एक्शन से ही इवैल्यूएट करते हैं. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेंज द ब्यूरोक्रेसी विद कॉलोनियल माइंडसेट. हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रिटिश के टाइम से है. इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861 लॉर्ड कैनिंग के टाइम से है, उससे पहले भी है. ठीक है, तो ये एक एक्ट है, उस एक्ट से काफी पुराना एक्ट है. तो वो जो माइंडसेट है कि जो हम बोलते हैं बाबू मेंटेलिटी, ये बहुत पुराना है. ओके, तो ये जो बाबू मेंटेलिटी से ही लैक ऑफ कंपैशन आती है, बिकॉज वी फील कि वी आर बाबूज, हमारे पास पावर है, हम कुछ भी करेंगे.
ठीक है, सब वहीं से आता है, जो कॉलोनियल माइंडसेट। तो उसको चेंज करने के लिए दिस एम्पैथी और कंपैशन वैल्यूज को इनकलकेट करना पड़ता है सिविल सर्विस ऑफिसर्स के माइंड में। So the British civil services were intelligent but lacked empathy. They were intelligent at doing the work, but empathy नहीं है. Even their code of conduct lacked any directives in this regard. उनका जो code of conduct था उस टाइम पे कुछ खास empathy के बारे में लिखा नहीं था. For the officers, public services meant ensuring the administrative, economic and strategic interest of the empire. उस टाइम से public services का मतलब क्या था? बस empire को खुश करना है. उनका जो empire का जो interest है, we have to उस एम्पायर को ही हमको खुश करना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सही करना है. द पब्लिक गुड इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, बट एम्पैथी के ऊपर उतना इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता था. सेकंड इज एम्पैथेटिक ऑफिसर्स आर द नीड ऑफ द आवर इन मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन टारगेटेड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ अगर करना है, इंक्लूसिव मींस डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका भला, सबका विकास, इंक्लूसिव एवरीवन. अब हमारा कंट्री जो है वहां पे बहुत डाइवर्स, आवर कंट्री इज वेरी डाइवर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज आर देयर, इनइक्वालिटी भरपूर है, इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो इनइक्वालिटी है तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिच, देयर विल बी पुअर, देयर विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. तो उनके लिए अगर आप दिस वैल्यू नहीं लाओगे तो हाउ द कंट्री विल ग्रो, how this inequality will decrease? नहीं हो सकता, right? So this is required. In developing countries, as bureaucrats are vulnerable to getting trapped in distancing confines of the power elites, so there is a disconnect between the bureaucracy and the people. क्योंकि हमेशा क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ट्रैप हो जाते हैं एलिट्स. मतलब when you get that the day you get the civil services, the kind of जो क्या बोलते हैं, the kind of obviously you get that respect, but you will get that, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना शोहरत, you will get that शोहरत. Okay, so you get trapped in that elitism. मतलब वो elite people आप समझने लगता है कि you have become a very elite people. So once you become elite, it's a mindset. Once you become elite, आहिस्ता आहिस्ता हम पुअर के साथ कनेक्टिविटी कम कर देते हैं. ठीक है, सो दैट ट्रैप में फंस जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स. दे आर वेरी वल्नरेबल टू दिस ट्रैप, रिमेंबर, एंड दिस इज अ रियलिटी. सो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्यूरोक्रेसी आपका और पीपल का. दिस कैन बी रिमूव्ड थ्रू एम्पैथी एंड कंपैशन. अगर आपका यू आर कंपैशनेट फ्रॉम योर हार्ट, आप अगर एलीट भी बनते, यू विल नेवर फील दैट यू आर एलीट इफ यू आर कंपैशनेट, बिकॉज कंपैशन एक ऐसा चीज है एलीट के साथ नहीं जाता है. Getting generally, so to remove this, to get out of this trap, you have to have that compassion attitude. Okay, moral sentiment is born in human heart when one starts looking at others with empathy. आप अगर empathy से मतलब देखना चालू करोगे, when you understand the people's problem, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में that moral sentiment inculcate होगा. That moral sentiment will start inculcating only when you start looking others with empathy. Okay, Rudyard Kipling once said, to move among the kings and yet not lose the common touch. Yes, आप किंग बनो. इट इज फ्रॉम लाइक एक गवर्नमेंट तरफ से उन्होंने बोला था कि ठीक है आप किंग बनो, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बट येट नॉट लूज द कॉमन टच. कॉमन लोगों के साथ वो चीज मत भूलना, लाइक उनके साथ पूछना, उनका प्रॉब्लम्स, उनका दुख दर्द जानना. गांधी जी ने बोला था, आई कॉल हिम रिलीजियस हु अंडरस्टैंड्स द सफरिंग ऑफ अदर्स. जो दूसरों का सफरिंग जाने, आई कॉल हिम रिलीजियस. ठीक है, ओके. Sir, can we say that British acted on the administration part with without empathy, but with the third one? With third one means कौन सा? Compassion. Compassion, obviously.
ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ पे आपको कंपैशनेट देखा, गिने चुने 4-5 लोगों को छोड़ के, ब्रिटिश गवर्नर जनरल छोड़ के किसी के पास कंपैशन नहीं था। अगर कंपैशन होता तो कॉलोनियल हमारे हमको हुकूमत करके रखते नहीं, राइट? वो तो सब अपने लिए कर रहे थे। हमसे यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या बोलता है, हमसे यहाँ काम करवा के वही चीज लेके जाते थे। दे वर यूजिंग आवर रॉ मटेरियल्स एंड यूजिंग इन देयर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ यूके। हमारे ऊपर टैक्स लगता था, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, मौजूदगारी सिस्टम, क्या थे ये सब कंपैशनेट का था? नो, द टोटल एपैथी। They never had compassion, except some people. They never had. ठीक है? So, like the fourth step of the compassion is like first we need to make sure that they have the empathy towards the process. Exactly. हाँ, अगर देखो बात है कि कंपैशन डायरेक्टली नहीं आ सकता, ठीक है? जनरली होता क्या है, अगर आप, ये एक लैडर टाइप का है, ठीक है? तो अगर आपका कंपैशन एटीट्यूड है तो सिंपैथी भी टिक है, एम्पैथी भी टिक है। एक्शन आप जब करोगे किसी के ऊपर, when you do something for the poor, obviously वो sympathetic empathy, अगर आप empathetic बनोगे तभी तो काम करोगे, बिना कुछ जाने, बिना, if you have a very hardcore, मतलब पूरा like you are totally a negative person, you never do something anybody, तो आप तो कभी कर ही नहीं सकते। If you don't understand the problem of others, how will you do something? You can only do something for the people selflessly if you understand the problem. If you understand the problem, I'll tell you my example. I understand the problem of students, exact understand. See, I can very easily do this only. I can very easily, I have option also. But the point is, ये भी है, I have experienced the problem and I'm doing it. Doing मतलब क्या? मैं content देता हूँ सबको, more than enough. Selflessly देता हूँ. तो यहाँ पे compassion attitude आता है because I have experienced that. Empathy है मेरे पास. I have खुद एक्सपीरियंस है, तुम्हारे शूज में मैं खुद एक दिन था, मैं खुद जानता हूं द प्रॉब्लम्स यू फेस, राइट? फॉर एग्जांपल, यू पर्सनली यू कम टू मी एंड आस्क कि दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट आई विल डू। अविनाश तुम खुद पूछते हो तो मैं क्या करता हूं तुमको, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अच्छा ये है, एक काम करते हैं, ऐसा करेंगे, तो वो चीज है। ओके, तो ब्रिटिश के अगर आप एग्जाम्पल लोगे, ब्रिटिश मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज एपैथी, वो कंपैशन था नहीं। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ लोग थे जो कि कंपैशनेट थे, जितना थे उनको ज्यादा टाइम दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड मैककेफे, उसको 1 साल दिया गया क्योंकि उसने प्रेस रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया। ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्रेस लिबरेशन। उसने प्रेस रेस्ट्रिक्शन हटाया, अच्छा था, बिकॉज ही वाज कंपैशनेट। एटलीस्ट हाँ, he gave the voice. ही गेव द वॉइस, तो इसलिए 1935 4 में आया, 5 में हटा दिया उसको। 1 साल के लिए आया था, बेंटिक के बाद। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, आई एम टेलिंग यू, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टूड। और ये कंपैशनेट था बिकॉज उसने हटाया, काम पे दिखाया, प्रेस रेस्ट्रिक्शंस हटाया, सिर्फ बोला नहीं, उसने हटाया भी, काम, एक्शन। ओके, सो ओवरऑल ब्रिटिश का अगर बात किया जाए, कैनिंग हो, डलहाउसी हो, कोई भी हो, दे वर नॉट कंपैशनेट पीपल। ओके, तो ये जो ये सब ये याद कर लेना। सी एथिक्स में क्या होता है, वी हैव 150 वर्ड स्कोप। सो लिखने के बाद इफ यू गिव सम कोट्स इट विल लुक गुड। जब हम अभी बहुत सारे कोट्स में नोट्स दिया हूं आपको, जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे हर पेज पे नीचे कोट्स है, तो अच्छा कोट्स रेडी करो, कंपाइल करो, ऐसे में काम आएगा। दिस एथिक्स विल हेल्प यू इन ऐसे। कुछ डायलॉग्स खुद भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो। जैसे कि एक मूवी आई थी सिंग इज किंग 2008 की, उसमें एंड में अक्षय कुमार क्या बोलता है, असल किंग वही होता है जो दूसरों के लिए लड़े। बस इंग्लिश में थोड़ा लिख के लिख देना, इसमें क्या है। बट उसमें ये मत लिखना कि गांधी जी की जगह की मत लिख देना। ओके, तो यू कैन गिव अ कोट एंड राइट, बट बेटर टू गिव कोट्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। गांधी जी हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए, भगत सिंह हो गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऑल आवर फोरफादर्स जिसने इंडिया के लिए लड़ा था। ओके, नेक्स्ट।
या फिर अगर आंध्रा तेलंगाना का हो तो फिर अल्लूरी सीतारामराजू के बारे में भी लिख सकते हो। ओके, डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पैथी आर एट टाइम्स इन कॉन्ट्राडिक्शन? अभी आया थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन, इसमें आपका थोड़ा मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी ऑफन आस्क्ड इन यूपीएससी। डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पैथी कभी ना कभी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को? हमको पता चल गया ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हमको पता चल गया एम्पैथी क्या है, दोनों अलग है, ठीक है? क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? सी, ऑब्जेक्टिविटी and empathy are at times in contradiction. Empathy is targeted towards individual, while objectivity looks at masses. ठीक है? Empathy हमेशा हमें वन टू वन, राइट, वन टू वन इसके प्रति हमारा इंडिविजुअल, अगर पूरा का पूरा पुअर भी हम लेंगे, दैट इज ऑल्सो, हम एक पर्टिकुलर एंटिटी को लेते हैं, हम इंडिविजुअल लिख सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिविटी हमेशा एक ओवरऑल मासेस के तरफ हम देख रहे हैं, एक वन पर्सन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए जज गिव्स मोर वेटेज टू एम्पैथी ओवर ऑब्जेक्टिविटी, ही मे गिव लीनिएंट पनिशमेंट टू ए क्रिमिनल एंड इन द लॉन्ग रन इट विल हर्ट द मासेस। आप देखो खुद, अगर एक जज एम्पैथी को ज्यादा वेटेज देगा, दुख दर्द को ज्यादा लेगा, और एक क्रिमिनल को उस हिसाब से पनिशमेंट कम कर देगा, तो यहाँ पे वो एम्पैथी को ज्यादा वेटेज दे रहा है ध्यान ऑब्जेक्टिविटी, तो ये तो गलत बात है फिर, ठीक है? तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एम्पैथी लॉगरिथम्स में आ जाते हैं। Syrian refugees have been flooding Turkey and European Union since many months. But only after a child is drowned and images appear in mainstream media, all EU nations have become attentive because of empathy of people towards an individual child. सब मतलब बहुत से, जैसे सीरिया क्राइसिस हुआ था, रिफ्यूजीज बहुत टर्की जाते थे, यूरोपियन यूनियन जाते थे, बट मोस्टली कोई खास न्यूज नहीं आता था। तब जाके आया जब एक छोटे बच्चे को ट्विटर पे देखा कि उसका जो वो ड्राउन हो गया था और हो गई थी, उसके इमेजेस अपीयर किए, तो फिर जाके यूएन नेशंस अटेंटिव हो गए, तो कहीं ना कहीं एम्पैथी जाग उठा, ठीक है? Killing of 1,000 people is worse than killing one. But if you are sympathetic to that one, you may lose sight of objectivity. Therefore, in Western society, जो Western जो नोलन कमिटी है, empathy sideline किया गया है, because they believe killing of 1,000 people is worse than killing one. मतलब क्या बोलते हैं, कोई किसी से भी एग्जांपल ले लो, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब पूरा देश को बचाने के लिए एक का मरना जायज है, ओके? तो एक का मरना भी तो बड़ी चीज होती है। Why one life will go like wasted? So वहां पे भी एम्पैथी को ज्यादा नहीं दिया जाता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी को दिया जाता है फॉर द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आप यहाँ पे वॉर का एग्जांपल ले सकते हो, कहीं पे भी वॉर का एग्जांपल, जब हम व्हेन इंडिया वॉर पे जाता है, यार कंट्रीज वॉर पे जाते हैं, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिविटी इज ग्रेटर देन एम्पैथी, बिकॉज हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वी टेक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। नहीं, वॉर इज नीडेड फॉर द सोवरेंटी और फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, उसमें हम एम्पैथी नहीं देखते हैं। वॉर इज द बेस्ट एग्जांपल इफ दिस सिनेरियो, ओके? सो यहाँ पे एथिक्स में एग्जाम्पल इज अ मस्ट, बिना एग्जाम्पल के आपको मार्क नहीं मिलेगा। वॉट एवर यू राइट, अगर इफ यू डोंट गिव एग्जाम्पल्स, proper justification, you will not get answer or you will not get marks. While empathy is necessary for almost any relationship, be it professional or personal, it is not always productive. आप खुद देखो, चलो एम्पैथी मान लिया, आप हमेशा आप एम्पैथेटिक हो, अब आपको हर डायमेंशन का आंसर देना है ना, यहाँ पे एक दो एग्जांपल अलग अलग से देना, अलग अलग डायमेंशन का देना है। एक यहाँ पे हमने कंट्री का दे दिया, ये दोनों कंट्री का दे दिया, ओवरऑल दो तरफा दे दिया। एक हमने एक जजमेंट और पॉलिटी रिलेटेड दे दिया। एक यहाँ पे हम इंडिविजुअल दे सकते हैं। इंडिविजुअल में आप देखो, हमेशा एम्पैथेटिक काम नहीं करता है, पीपल में टेक फॉर यू फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। आप हमेशा अगर एम्पैथी से काम करोगे, बी इट प्रोफेशनल और पर्सनल, देयरफॉर इट इज बेटर टू इनकलकेट ऑब्जेक्टिव एम्पैथी। तो द राइट वर्ड क्या है?
Objective empathy that involves being mindful of one's emotional response while still practicing compassion. यहाँ पे आप बढ़िया से एग्जांपल दे सकते हो, अपने इंडिविजुअल लेवल के एग्जांपल दो कोई भी. आप एम्पैथेटिक हमेशा रहते हो, यू आर ऑलवेज एम्पैथेटिक. कोई भी रिलेशनशिप में इफ यू बिकम मोर एम्पैथेटिक, हमेशा आप एक तरफा मतलब हमेशा उसके बारे में सोचोगे. यूजुअली पीपल टुडे लिव इन अ वेरी क्रूएल वर्ल्ड. दे स्टार्ट utilizing that attitude. If you always have the thing of saying a yes to everyone, you can't say no. It means people will start using you. Some or the other people will start using you, whether it's professional, whether it's personal. So empathy is necessary, but it is not always productive. That is what I'm trying to say, because the question demands that. Contradiction की बात हो रही है. कोई रिलेशनशिप ले लो. So आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंडिविजुअल लेवल पे यू हैव टू आल्सो गिव. सो व्हाट देन, अगर हम पूरा इट इज नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव, देन व्हाट, एक वे फॉरवर्ड भी तो होगा. सो इट इज बेटर टू इनकलकेट ऑब्जेक्टिव एम्पैथी. ऑब्जेक्टिव एम्पैथी वर्ड में क्यों कर रहा हूं यूज, यहाँ पे आप एम्पैथी भी करते हो बट ऑन अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. ऑन यू आर बिकमिंग एम्पैथेटिक ओनली थ्रू प्रॉपर logical reasoning or proper evidence. Evidence के हिसाब से you become empathy. That is best. सबसे बेस्ट है. ऑब्जेक्टिव भी रहा, एम्पैथी भी रहा, एविडेंस के हिसाब से, so that nobody can use you. आप ये चीज ब्यूरोक्रेसी में भी ला सकते हो. There will be times when people will use your this quality. हाँ, ये बहुत ही एम्पैथेटिक है, इसको थोड़ा दुख दिखा दो, ये पैसे सैंक्शन कर देगा, and that money can go anywhere. So objective empathy is the right way forward. ठीक है, समझ में आया अविनाश, समझ में आया? Yes, sir. Okay. Like the simple thing is like objective part will be changing from the one dimension to another dimension. When it comes to empathy, it will be the constant thing. But we need to more, when we take objective as a prospective, it will be changing from each scenario. Objective will be changing, but what I'm trying to say here is, कोई भी आप empathy से decision लेते हो, make it in an objective way. Proper analysis your own intention. हाँ, इंटेंशन नहीं. एम्पैथी अगर आपका है तो इंटेंशन आपका अच्छा है, बट अदर पीपल इंटेंशन में बी बैड, राइट? Yes, sir. तो वहां पे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं करते हो तो यू कांट नो व्हाट इज द लाइक द मोटिव बिहाइंड द अदर पर्सन. तो वहां पे आपका एम्पैथी एटीट्यूड कोई यूज करके जा सकता है. somebody can use your empathy attitude, right? It happens, right? Yes. सबके साथ होता है. सो वहां पे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज नहीं करोगे, सो मोस्टली क्या होता है, ये एम्पैथिक एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं फेलियर करेगा लाइफ में. सो ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव एम्पैथी. हम सबको तो खुश नहीं कर सकते, राइट? वी कांट सेटिस्फाई एवरीवन. सो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इज अ मस्ट टू बी यूज्ड इफ यू आर हैविंग दिस वैल्यू ऑफ एम्पैथी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, अब आ जाओ और एक चीज, डिफाइन टॉलरेंस. व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स? टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस रेफर्स टू, सी वी ऑल नो व्हाट इज टॉलरेंस, बट एक अच्छे तरीके से लिखना है जैसे हम एथिक्स पेपर लिखते हैं. टॉलरेंस रेफर्स टू फेयर, objective and permissive attitude towards those whose opinion, practices, race, religion, nationality, etc. differ from one's own. Tolerance means आप fair हो, आपका objective attitude है, आपका permissive attitude है towards those opinion जो कि आपसे differ करता है. ठीक है, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी नेशनलिटी हो, अगर कुछ चीज आपके सामने, या फिर आपका कोई भाई हो गया, या फिर एनीवन, आपका बॉस हो गया, यू वांट समथिंग एल्स इज टेलिंग, सो योर एटीट्यूड शुड बी परमिसिव, ऑब्जेक्टिव एंड फेयर टुवर्ड्स हिम. यू मे नॉट अग्री, बट यू शुड बी टॉलरेंट. इन सिंपल वर्ड्स, टॉलरेंस इज एन एक्ट और कैपेसिटी टू एंड्योर द डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज. आप जो डाइवर्स व्यूज आप एंड्योर करते हो,
and practices in our environment. Tolerance is a basic value for other values. बहुत सारे values है. Tolerance, जब आपका tolerant जो tolerance value नहीं है, तो दूसरे values कैसे आएंगे फिर? If you don't hear, if you don't have a fair attitude to other views, तो फिर जितना भी values है, they will not come into place. Empathy and compassion is not possible without tolerance. That is why Plato has called temperance as one of the 4 cardinal values. हम करेंगे वो 4 cardinal values of Plato क्या है, वो दूसरे क्वेश्चन में है. तो इसलिए बोला है. To quote Voltaire ने बोला है, I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. I may disagree. आप जो बोलते हो I may disagree. But आपका right है to say it. Nobody can stop you to say it. Even I can't stop if I don't like what you say, but your right to say I must support. So, but I'll defend to the death your right to say. मैं उसको defend करूंगा. I may disagree with you. So this quote ये इस tolerance के लिए पूरा fit होता है. So you have to make those quotes and write it. जहां पे question का demand जो है, if you give that kind of quotes, तो answer में वो flavor आ जाता है, खास करके ethics में. Example, Jawaharlal Nehru has been very tolerant to criticism. He's been very tolerant. After Indochina War, his own ministers criticized him in the parliament, but he listened to them and acknowledged their criticism. तो ये tolerant है, इसीलिए ये tolerant attitude है. Importance of tolerance for civil servants. तो ये क्यों important है? Impartial हो गया आप, अगर आपके पास tolerance है, you will be impartial, objective and non-partisan. Will not support any political party because political neutrality is one of the most important value or foundational value of or impartiality of civil services. A civil servant cannot treat everyone equally if he is not tolerant. अगर आप tolerant नहीं हो, आप equal नहीं करोगे सबके साथ. Okay? To make fair decision fair लोगे. It is a constitutional obligation of a civil servants. Tolerant is inherent in our secularism. See, मैं ये नहीं बोलूंगा कि tolerant is mentioned in ये word mention है हमारे articles में, constitution में. वैसा नहीं है. But कहीं ना कहीं constitutional obligation है, because it is inherent, not explicit. It is in secularism. Secularism is a part of our constitution. ठीक है? Preamble में लिखा है secular. So it's a part of our constitution. अब secularism का मतलब भी तो वही है. Equal treatment for all religions. If you are not tolerant, how can you treat everyone equally? Tolerance is very important to develop social capital. Social capital develop. What is social capital? Can anyone tell me what is social capital? Anyone? तो social capital मतलब education, health, ये बढ़ाने के लिए खास you have to be tolerant. खास करके education, society in large must main यहाँ पे आता है ये. So in society को पूरा बढ़ाने के लिए, because in particular to India we are talking, education हो गया, health हो गया, बहुत सारे जो sectors है which are very underdeveloped. तो वहां पे जब आपके पास tolerant नहीं है to understand their problem, it is not बढ़ नहीं सकता वो. Article 19. Civil servants have to show tolerance not only different practices but also different viewpoints. That is जो right to speech होता है. Different view, right to speech. हर आदमी का एक right to speech है and expression. तो everyone will say everyone have different viewpoints. So वहाँ पे tolerance की बहुत जरूरत होती है. To do service even in case of value conflict. अगर आपका एक value आपका बॉस का, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हो. सपोज एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 2 वैल्यूज है. बॉस, आपका कोई बॉस है, यू आर द आईएएस ऑफिसर, आपका एक बॉस है. नाउ बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज. इसका एक वैल्यूज एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू. तो आप एक दूसरे को मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट आइडियोलॉजी आप बोल सकते हो, डिफरेंट आइडियोलॉजी.
बट आपको मिलके काम करना है, बिकॉज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो, यू आर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मिलके काम करना है. अब मिलके अगर काम नहीं करोगे तो देयर विल बी the services will start becoming inefficient for the people, or people will lose the trust. So अगर आप उस टाइम पे अगर दोनों के पास टॉलरेंट और टॉलरेंस कैपेबिलिटी है, even if they are having different ideology, they will do the right service. They'll do the right service. So एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे एग्जांपल आप दे सकते हो, सर्विस सही जाएगी if you have value conflict. Okay, so to quote Mahatma Gandhi, decency and tolerance to be of any value must be capable of withstanding the severest strain. अगर डिसेंसी और टॉलरेंस आपके पास है कोई भी वैल्यू का, तो आप यू आर कैपेबल टू विथस्टैंड द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, severest strain. ओके, नेक्स्ट. ओके, अब आ जाओ इंटीग्रिटी के ऊपर. नाउ और एक वैल्यू है जिसका नाम है इंटीग्रिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. I have already told you, but I'll tell again. Now, first of all, the question is distinguished between intellectual integrity and moral integrity. Why is integrity the supreme value? तो यहाँ पे you have to explain first what is integrity. Integrity क्या है? मैंने बोला था, integrity is, if you are a man of integrity, it means whatever you think, okay, whatever you think, whatever you say, and whatever you do, that is action. Okay, ये तीन चीज के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. They should be the same. It's very difficult to be a man of integrity. हम बोल तो देते हैं किसी को man of integrity, but it's very difficult. It's very difficult because the kind of situations we are going through, the kind of dynamic circumstances we have, every day situation changes. It's very difficult to think the same, say the same, and do the same, or to reduce the gap between these three. So this is integrity. So you explain what is integrity one line, then come to the question. Intellectual integrity क्या है, moral integrity क्या है? Okay. Mute करो अविनाश. Okay. So integrity means being honest and consistent with thought, speech, and action. Consistent with thought, speech, and action. It refers to the quality of eliminating the gap between what we think, what we say, and what we do. Okay? Integrity is integration of ideals, conviction, standards, beliefs, and behavior. So it is the integration of ideals. आपका आइडियल क्या है? What is your conviction? आप कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हो अपने लाइफ में? आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिहेवियर, सब का मिश्रण होके it should be the same. People with integrity are controlled by their own conscience rather than what's happening in the environment. वो अपना conscience यूज करते हैं, अपना वैल्यू सिस्टम, अपना बिलीफ सिस्टम. They are not influenced. अपना morality. Okay. So this is integrity. Now come to intellectual and moral integrity. Now intellectual integrity क्या है? It means to be consistent and true to one's thinking and to hold oneself to the same standards one expects others to meet. It also means to honestly admit discrepancies and inconsistencies in one's thoughts and actions and to be able to identify them. It means you are consistent and true to one's thinking and to hold oneself to the same standards one expects others to meet. It also means to honestly admit, आप अगर आपको inconsistency हो जाती है आपके thought में या फिर discrepancy हो जाती है, you admit it and you are also able to identify them. Intellectual integrity from a thought point of view, from a thinking point of view, intellectual. Moral integrity means consistencies and honesty in the standards used for judging others as well as yourself as right or wrong. यहाँ पे आप स्टैंडर्ड सेम यूज करोगे. Usually what we do, our
Like when the thing comes to us, we change the rule. Same cheese we judge to others, but when it comes to ourselves, we change the rule. Moral integrity में वो नहीं है. Consistency in the standards. The key word is consistency. Consistency is in the standards. क्या rule आप use कर सकते हो for judging others as well as yourself. आप खुद को भी judge करते हो और दूसरों को भी judge करते हो. आप same standard use कर सकते हो. If you use the same standard in judging others and yourself also, then you are a man of moral integrity, which is very difficult to do. Which is very difficult. Same standard आपको choose करना पड़ेगा. Okay, fine. Now the second question, why integrity is a supreme value? Integrity सबसे ऊपर है, honesty के ऊपर आता है. Yes. Sir, in the previous one, you said that moral integrity and the intellectual integrity. So which one is the more supreme among these both? See, it will depend. ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कौन सा सुप्रीम है. एटलीस्ट यहाँ पे इंटीग्रिटी सुप्रीम है. See, ये इंटीग्रिटी का सबसेट है, दो टाइप्स. Overall, always integrity will be the top, above honesty also. But here, it depends. Situation के ऊपर. Obviously, both. Always there will be always that tug of war, or else the versus between intellectual integrity and moral integrity, because sometimes it will, let's take a religion as an perspective where we need to mold ourselves to the certain principles. Exactly. See, देखो, अगर आप religion का example लेते हो, ठीक है? So every religion has some values and belief system, right? Yes or no? Yes, sir. So you are sticking to your belief system. Suppose, ठीक है? You, whatever you think, whatever you do, whatever you say, you do as per your religion. Okay, as per your religion. So now the situation is, suppose moral integrity. ठीक है? आप same चीज आप और same standard or rule of your religion you are using for judging others and also yourself. So you are a man of moral integrity character. Okay? यहाँ पे जो होती है ना intellectual integrity, यहाँ पे आपका you are consistent to one's thinking and to hold oneself to the same standards, not expect others to meet. One expects others to meet. मतलब आप यहाँ पे एक particular चीज you think, okay, and that think or that thought is on some standards. And to hold oneself in the same standards, one expect others to meet. आप others को भी उसी standard के हिसाब से सोचते हो. It is more of an intellectual thing. तो यहाँ पे mostly मतलब कौन बड़ा कौन छोटा यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर. These are different things. There are different things, but yes, there will be some situations when these two will come at loggerheads. आएगा 100% आएगा. कोई एक एग्जांपल बताओ. Like using the sound systems or loud sound systems with the religion's perspective. Like people think that it, like some group of people think that it is an intellectual. From their perspective, yeah, it is good. But when it comes to the other thing, it is morally wrong. See, morally, again, the thing is, it depends on person to person. It is very difficult. That's what I'm saying. It's very difficult. अब जो साउंड होता है, जो बहुत ही न्यूज में था, जो साउंड आता है, तो साउंड होता है, नॉइज होता है, तो वो चीज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया है. बट द थिंग इज देयर यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू द सेम स्टैंडर्ड्स, राइट? तो दैट्स व्हाट हैपेंस ना. We all are different people. So there is one religion, there is another religion. Now, if you are from a particular religion and another your friend is also from the same religion, okay, so he thinks, suppose we'll talk about intellectual integrity. He thinks ki okay, the standard, like he thinks on a very rational way कि हाँ
नॉइज होती है, नॉइज पोल्यूशन होती है, जो भी होता है, एंड ही डजंट एक्सपेक्ट यू टू थिंक इन द सेम वे, ही डजंट एक्सपेक्ट, स्टैंडर्ड्स गलत होता है, तो वहां पे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी आएगा या नहीं आएगा? बताओ। Like it will not come, no, so like he will not make sure that I will be following the same. Exactly. To hold oneself to the same standards, one expects others to meet. Others to me. और अगर भी उसको कोई गलती होती है, यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, he is ready to accept that, to honestly admit that. मोरल इंटीग्रिटी इज समथिंग एल्स. यहाँ पे हम जज करते हैं, यहाँ पे हम हमारी सोच की बात होती है, यहाँ पे हम जज करते हैं, जो कि वेरी इजी, यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल आप दे सकते हो. वी जज पीपल, वी डोंट जज आवरसेल्फ. व्हेन वी डू, इट इज द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक मदर इन लॉ होता है, ठीक है, एक डॉटर होता है, ठीक है, और एक डॉटर इन लॉ होता है, ठीक है. अच्छा टॉपिक है ना? Yes, sir. यस सर. तो Mother- मदर इन लॉ, जनरली इंडिया में क्या होता है, मदर इन लॉ का भी एक डॉटर है, ठीक है, ये इसका मदर इन लॉ है. तो यहाँ पे मदर इन लॉ क्या सेम स्टैंडर्ड पुट करती है डॉटर के लिए और डॉटर इन लॉ के लिए? दोनों, वैसे तो दोनों दे आर गर्ल्स, राइट? तो जनरली नहीं होता है, राइट? There comes the moral integrity. मोरल and इंटीग्रिटी, हाँ. तो सो दैट इफ शी पुट्स द सेम स्टैंडर्ड, सो दिस पर्सन इज अ मैन ऑफ मोरल इंटीग्रिटी. moral integrity. हाँ, मतलब डॉटर कुछ भी कर सकती है, लेकिन डॉटर इन लॉ नहीं कर सकती है. ऐसा क्यों? सो मोरल इंटीग्रिटी का यहाँ पे क्वेश्चन आता है. सो व्हेन यू गेट एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ केस स्टडी, देयर ओनली इफ यू, अगर आपको पता चल गया, यू हैव टू यूज दिस वर्ड, यू हैव टू यूज दिस वर्ड. मोरल इंटीग्रिटी नहीं है, और द वैल्यू ऑफ मोरल इंटीग्रिटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. You have to use moral integrity there. Nobody will ask you moral integrity meaning. If you know the meaning, if you use it, you'll get the mark. Simple. ठीक है? Okay. Now coming, why integrity is a supreme value? Why integrity is a supreme value? Integrity is morality in action. आप moral हो, लेकिन हम action में दिखाते भी हो. जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, और जो आप करते हो. It integrates morality with behavior or action. Integrity is doing right thing even when nobody is watching. आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, it is same. कोई नहीं है तभी भी आप अगर वही चीज कर रहे हो जो आपने सोचा है, और जो आप जो वैल्यू सिस्टम का फॉलो करते हो, you are a man of integrity even if nobody is watching. Integrity is non negotiable and non selective. आपने यहाँ पे negotiate का कोई सवाल ही नहीं है. आपका जो वैल्यू सिस्टम है वही करोगे, कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है. इट्स नॉन सिलेक्टिव इन नेचर. पर्सन विद इंटीग्रिटी आर नॉट वरीड अबाउट रिजल्ट्स, बट आर ओनली कंसर्न्ड विथ वॉकिंग ऑन द राइट पाथ. वो रिजल्ट के लिए नहीं सोचते हैं, सही पाथ में जाना उनका मेन काम है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एपीजे अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट, he invited his family and extended relatives for 2 days. All the expenses were borne by president himself, even though as per law प्रेसिडेंट हाउस वुड हैव टेकन द एक्सपेंस. अगर उन्होंने नहीं भी किया होता एक्सपेंस, प्रेसिडेंट हाउस वुड हैव टेकन. सरकार के खर्चे में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ऐसा नहीं कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, बट इंटीग्रिटी के लिए आपको ये करना पड़ेगा. इफ यू आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी, आपको अगर पता है कि हाँ ये मेरा खुद का खर्चे में है, यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी मिलेगा, यू विल गेट ए कार, गवर्नमेंट कार, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कार मिलेगा. आप ऑफिस में हो, ठीक है, यू आर इन ऑफिस, यू आर वर्किंग. आपको फोन आएगा, कौन? आपकी वाइफ या फिर आपके बच्चे, चिल्ड्रन. फिर वो गाड़ी वापस जाएगा, ड्राइवर को आप बोलोगे जाओ पिकअप करो इनको और इनको मॉल घुमाओ, सिनेमा दिखाओ, और शाम को आ जाना मेरे यहाँ. तो ये जो आप, और विदाउट एनी पेट्रोल, वो गवर्नमेंट के खर्चे पे जा रहा है. तो इसमें ऐसा नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हो,
आप कोई ब्राइब नहीं कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, बट आप इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं हो। ओके, therefore you can conclude that integrity is a value which cannot be enforced through external control। ये आपको कोई बाहर का चीज कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता या फिर बोल नहीं सकता कि आप ये से करो तो आप इंटीग्रिटी हो गए, बहुत कम होता है। सोर्स ऑफ इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी कहां से आता है? आपका मोरलिटी से आता है, मोरल रीजनिंग, एंड नॉट प्रॉफिट और लॉस रीजनिंग, कितना मुझे फायदा है कितना नुकसान है, वहां से नहीं होता है। आपका मोरल रीजनिंग जो कि आपका वैल्यू सिस्टम से आता है, आपका व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, कौन सा वैल्यू है आपके। तो ओवर द इयर्स, आप जो बचपन से लेके आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते हो, जो वैल्यू सिस्टम आपका इनकलकेट होता है आपके लाइफ में, वहां से कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता वो मोरल रीजनिंग बढ़ते बढ़ते दैट इंटीग्रिटी वैल्यू कम्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट वैल्यू, इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत अर्ली एज पे नहीं आ सकता ये। टू कोट महात्मा गांधी, हैप्पीनेस इज व्हेन यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। वेरी कॉमन कोट है ये, महात्मा गांधी ने बोला है हैप्पीनेस तभी होता है जब जो आप सोचते हो, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, वो अगर हार्मनी में है, वहीं पे आपका हैप्पीनेस आएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज डेडिकेशन इंपोर्टेंट पब्लिक सर्विसेज? कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। डेडिकेशन क्या? इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। It is commitment with passion, love, and perseverance. It makes a difference in the individual's motivation in achieving his goals and the length of measure he will take just to achieve it. हर जगह यूज होता है। बिन डेडिकेशन नॉर्मल पब्लिक सर्विसेज में है या फिर लाइफ में है, हर जगह एजुकेशनल फील्ड में है। तो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विसेज के लिए, बिकॉज डेवलपमेंट, in order to raise India from dark ages of colonialism, 200 years of exploitation, an extra effort is required. तो बिना डेडिकेशन के कुछ होगा नहीं डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया में अगर डेवलप करना है तो पब्लिक सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स हैज टू हैव दैट डेडिकेशन, क्योंकि 24/7 यू हैव टू वर्क, 24/7 यू हैव टू वर्क। इफ यू आर ओनली डेडिकेटेड टू योर वर्क, देन ओनली यू कैन वर्क। यू से नहीं आज बहुत काम कर लिया थक गया, नहीं, डेडिकेशन में वो सब चीज नहीं आता है। हॉस्टाइल कंडीशंस में काम करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, maybe due to political atmosphere, punishment, posting, etc. In these kind of conditions, dedication towards work is the only way out. अगर आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में काम करने को भेज दिया गया, पनिशमेंट पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में काम करने को भेज दिया, कोई एक वेरी डिफिकल्ट टेरेन में काम करने को भेज दिया गया, बट इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर वर्क, यू विल नेवर सी दैट प्लेस कि व्हाट इज दैट प्लेस। आई विल वर्क बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज, मुझे लोगों की मदद करनी है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, पब्लिक सर्विस के लिए काम करना है, बीट वट एवर प्लेस, बीट रूरल प्लेस। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, रूरल प्लेस में जाना आपका मूड ऑफ हो जाता है, पनिशमेंट पोस्टिंग, मुझे वहां पे पोस्टिंग नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाना, इट मींस यू आर नॉट डेडिकेटेड। करप्शन, इंटरनल कंट्रोल अगेंस्ट करप्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेडिकेशन। अगर आप इफ डेडिकेटेड टू योर, तो करप्शन कम होगा। Dedication to public services involves integrating oneself with the idea of public interest. A civil servant remains motivated even if the task given to him is non-exciting and unwanted. अगर task उसको non-exciting भी है, तभी अगर वो काम करेगा, वो motivated रहेगा. Only if he has this quality, dedication. अगर आप इवन आप ये तो सिविल सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज हो गया, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में भी है, एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट येट इंटरेस्टिंग, यू फील इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, एक बार डेडिकेशन लेके आ जाओ, फिर देखना कैसे इंटरेस्टिंग होता है वो। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। इफ हैव डेडिकेशन टू एनीथिंग, दैट थिंग विल बिकम, एंड दैट थिंग यू ऑलवेज से ना, सर हमको थोड़ा मोटिवेट क्यों करो, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम, पहले रूट को समझो। रूट कॉज ये कि आपका डेडिकेशन कम हो गया है। जिसके पास डेडिकेशन है उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दिस इज द रियल ट्रूथ आई एम सेइंग। मुश्किल है, इसलिए मोटिवेटर्स हैं, मेंटर्स हैं, दे मोटिवेट यू, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू डू नॉट नीड एनीवन बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस थिंग। वंस यू गेट दिस, आपका 70% काम खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हो, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, होमी भाभा न्यूक्लियर एनर्जी, एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों ये सब, क्यों उनका नाम आज है? बिकॉज दे वर डेडिकेटेड टू व्हाट दे आर डूइंग। एक लाइफ में उन्होंने 100 काम नहीं किया है, एक ही काम किया है। डेडिकेटेड, यू हैव टू डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क। ब्यूरोक्रेसी का काम है, फिर ब्यूरोक्रेट्स हैव टू डेडिकेटेड टू ब्यूरोक्रेसी।
नथिंग की ऐसा नहीं कि घर कितना बनाना है, फ्लैट्स कितना चाहिए, वो सब नहीं होता है. ट्रू strength lies in the submission which permits one to dedicate his life through devotion to something beyond himself. ट्रू स्ट्रेंथ वहीं पे मिलता है जब आप एक पर्टिकुलर चीज को इतना डेडिकेट करते हो बियॉन्ड योरसेल्फ, आपके बियॉन्ड भी यू डेडिकेट, देन वहां से ही ट्रू स्ट्रेंथ आती है. रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक इम्पार्शियलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पार्शियलिटी हमको पता है, हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम डिफाइन करेंगे पॉलिटिकल क्या है, पब्लिक क्या है. इम्पार्शियलिटी इज अनबायस्ड बिहेवियर. सिंपल, अनबायस्ड बिहेवियर. आप पार्शियल नहीं हो. डिसीजंस आप लेते हो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से रादर देन एनी बायस और प्रेजुडिस. आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से लेते हो तो यू आर इम्पार्शियल. It is the principle of justice holding that decisions should be based on objective criteria rather than on the basis of bias or prejudice. So same thing. So ये वो principle है और वो justice, principle of justice है जहां पे आप decisions purely objective criteria पे लेते हो. You are not taking on any bias. That is simple meaning of impartiality. Then what is political impartiality then? It holds that a civil servant will serve the government to the best of his ability, no matter what his own political views are. आपका कुछ भी political views हो, आपका कुछ भी political views हो, civil servant will serve the government to the best of his ability. कोई भी political हो, आप अगर कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप आम आदमी की पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी को भी सपोर्ट करते हो, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसको सपोर्ट करते हो. यू कैन सपोर्ट एनी पार्टी, you have a right to support, but support from inside that should not come into your work, because you are working for the people through the government. He will act in a way which deserves and retains the confidence of ministers. आप ऐसे काम करोगे जो भी आप मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस को रिटेन करोगे, because you will be working under the minister. It involves serving the position rather than the person occupying it. आप उस मिनिस्टर की पोजीशन को सर्व करते हो, उस मिस्टर को सर्व नहीं करते हो. इफ यू आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आप उसका सेक्रेटरी हो, यू आर द आईएएस ऑफिसर ऑफ दिस, सो दैट विल बी ए मिनिस्टर. तो उसके अंडर में आप काम करोगे. यू आर सर्विंग द मिनिस्ट्री, यू आर नॉट सर्विंग द मिनिस्टर. दिस इज द डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस. यू आर नॉट सर्विंग द पर्सन. आज वो पर्सन है, कल X आएगा, कल Y आएगा, but you will be still there. Okay, so you are serving the position. The civil servant cannot defend and criticize the decision. You cannot defend. So political impartiality में क्या होता है? You cannot defend or criticize the views of the ministers. You must implement the minister's policies with objectivity, no matter what his personal views are. लेकिन आप पॉलिसी को ऑब्जेक्टिविटी से क्लियर करोगे. कोई गलत हो रहा है, now you will ask कि sir how can we not defend? If that is wrong, then if the minister tells us to do something wrong, that is the thing. Now you have to do it objectivity. If you have any problem, you can talk, you can show facts, you can show your statistical analysis. एक तरीका होता है. You simply can't say कि you are wrong. You have to show through facts and statistical analysis. आपको feel भी problem है, talk to your seniors, talk to your employees. Okay, he cannot disclose the advice that he has given to the ministers. You also cannot disclose. So these are the components of political impartiality. आप disclose नहीं कर सकते advice that you have given to the ministers. You have given. You can't disclose in the public. आज के डेट में ऐसा नहीं होता है. आज Twitter आ गया है, Instagram आ गया. Most of the many civil servants are very public, very vocal about everything. That is wrong. देखो, illegal नहीं है. These are values. इलीगल कहीं नहीं है, कहीं लिखा नहीं, कोई लॉ पे भी अगर करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, वो अलग बात है. These are the value system, values. So public impartiality क्या है? It means equal treatment. Public impartiality means equal treatment of all people. The acceptance of bureaucracy is due to public impartiality. आप अगर equally treat नहीं करोगे तो public में deficit होगा, trust deficit होगा. Public impartiality is a constitutional obligation. Article 14, equal.
Still then there are restrictions, we understand that, but overall it is a constitutional obligation. हम ये नहीं बोल रहे कि public impartiality exactly लिखा है आर्टिकल में. It is a obligation means it has a reference. ठीक है. In fact, one of the logic of all India service is public impartiality. A civil servant must carry out his responsibility in a way that is fair, that is just and equitable, and reflects his commitment to equality and diversity. But in unequal circumstances, लेकिन आपको ये भी लिखना पड़ेगा, हाँ, ये this is not absolute, हमेशा नहीं हो सकता, because we in India people are diverse, rich है, poor है, अलग अलग communities हैं, but जब circumstances unequal हैं, impartiality will be replaced. Impartiality पूरा नहीं हो सकता. Impartiality will be replaced by the word क्या? Equity and fairness. For example, separate relaxation दिया जाता है women को, old age को. वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि no ये impartiality है because यहाँ पे equal treatment नहीं हो रही है. You can't say कि there is no equal treatment because in a country like India this is also required. So use the word equity and fairness. Reservation दिया जाता है SC, ST, OBC को because for upliftment. For equality, हम equality के लिए तो देते हैं reservation, नहीं तो क्यों दें? Okay, so these are the हम पहले questions कर दिए so that you get an idea, you got the idea of the meaning. Next we'll start from we'll start from notes. I'll cover each and everything. Okay, mostly कल ही कर देंगे. Okay, okay, fine. Thank you.